بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ پاناما کیس کی جے آئی ٹی میں وزیر اعظم کے چھوٹے بیٹے حسن نواز کی پہلی پیشی۔ لندن فلیٹس، آف شور کمپنیوں اور بیرون ملک کاروبار سے متعلق سوالوں کے جواب دیں گے۔ فائلیں لے کر ساتھ آنے والے پرسنل سیکرٹری کو باہر ہی روک دیا گیا۔ جبکہ نون لیگ کے رہنما آج بھی فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے باہر موجود تھے۔ حسن نواز کے بڑے بھائی حسین نواز 5 دن میں 3 بار پیش ہو چکے ہیں۔ حسین نواز جے آئی ٹی میں 4تھی بار کل پیش ہوں گے۔ اور آج کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پاناما کیس کی جے آئی ٹی، جس میں وزیر اعظم کے چھوٹے بیٹے حسن نواز پہلی بار پیش ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کے چھوٹے صاحبزادے حسن نواز بھی پاناما کیس میں جاری تفتیش کے سلسلے میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ وہ آج صبح 9:55 پر جے آئی ٹی کے اسلام آباد کی وفاقی جوڈیشل اکیڈمی میں قائم سیکریٹریٹ پہنچے۔ حسن نواز سے پہلے ان کے بڑے بھائی حسین نواز اب تک 3 مرتبہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ حسین نواز پہلی مرتبہ 28 مئی کو، دوسری مرتبہ 30 مئی جبکہ تیسری بار 1 جون کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ انہیں ہفتے کے روز دوبارہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا سمن بھی جاری ہو چکا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی نے حسین نواز سے مے فیئر فلیٹس کی ملکیت سے متعلق تفصیلات طلب کر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے ان سے ہل میٹلز لمیٹڈ، عزیزیہ اسٹیل ملز اور دیگر کمپنیوں سے متعلق تفصیلات بھی پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ حسین نواز نے تیسری پیشی کے موقع پر لگ بھگ 6 گھنٹے جے آئی ٹی کے سامنے گزارے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں حسین نواز کا کہنا تھا کہ حسین شہید سہروردی سے لے کر آج تک صرف ہمارے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہوتا آیا ہے۔ حسین نواز کا کہنا تھا کہ ہمارے اثاثے آج بھی وہی ہیں جو گزشتہ دور حکومت میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق چلیں گے تو ٹھیک ہے، اگر معاملہ قانون کے مطابق نہیں چلے گا تو سپریم کورٹ میں اور عوام میں جائیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں حسین نواز کا کہنا تھا کہ انہوں نے تمام سوالات کا جواب دیا، تفتیش کرنے والے مطمئن ہوئے یا نہیں یہ ان سے پوچھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خاندان کے خلاف کوئی ثبوت ہے ہی نہیں تو سامنے کیسے آئے گا۔ اور حسن نواز کی پیشی سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ اعزاز سید سے۔ اعزاز بتائیے گا، حسن نواز سے جے آئی ٹی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اور کیا کسی اور پیشی کا بھی امکان ہے آج؟ جی، اب تک ہماری اطلاعات کے مطابق صرف حسن نواز ہی پیش ہوئے ہیں اور 2 گھنٹے 10 منٹ سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے۔ حسن نواز سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ جو ہی صبح حسن نواز پہنچے تو ان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کچھ دستاویزات بھی ان کے معاون اندر لے کر گئے ہیں، کچھ ڈاکیومنٹس لے کر گئے ہیں اور کچھ فائلیں ہیں جو اندر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو پیش کی گئی ہیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ اعزاز سید تفصیلات کے لیے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور مسلم لیگ نون کے رہنما آصف کرمانی نے کہا ہے کہ نہال ہاشمی نے جو کیا اس پر پارٹی نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ عمران خان نے اداروں کے بارے میں جو زبان استعمال کی، دل دکھتا ہے۔ یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان نے پاکستان میں گالی کی سیاست کو فروغ دیا۔ مسلم لیگ نون نے عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلائی۔ پاکستان کی سیاست میں گالی کو، گلوچ کو، گندگی کو، بد اخلاقی کو، بد تہذیبی کو فروغ دیا ہے، جس نے اداروں کی توہین کی، جس نے عدالتوں کی توہین کی، جس نے عدالتوں کے معزز ججوں کی توہین کی، اگر یہی کام میں نے کیا ہوتا، خدا نہ خواستہ، میں تو عزت کرنے والا آدمی ہوں، اداروں کا احترام کرنے والا آدمی ہوں، ججز کا احترام کرنے والا آدمی ہوں، ہم نے تو تحریک چلائی ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے۔ لیکن اگر جس قسم کی زبان عمران خان نے عدلیہ کے بارے میں استعمال کی ہے، دل دکھتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر وہ زبان، اس کا چوتھا حصہ بھی میں نے یا کسی عام نے کیا ہوتا تو آج عمران خان 6 مہینے کے لیے حوالات میں ہوتا۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ نہال ہاشمی صاحب نے جو کیا، پارٹی نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ اب معاملہ عدالت میں ہے، ہمیں جو عدالت فیصلہ کرے گی، ہم نے ہمیشہ عدالتوں کے فیصلوں کو قبول کیا ہے۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز نے کہا ہے کہ اداروں کی تذلیل کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ دانیال عزیز نے یہ بھی کہا کہ حکومتی اداروں کی تذلیلوں اور اداروں کی گئی ہے، پولیس اہلکاروں کو او اے آئی جی اور او اے ایس پی تک بھی کہا گیا۔ یہ جو ایک تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کی طرف سے خدا نہ خواستہ کسی قسم کی بھی اداروں کی تذلیل یا اداروں کے بارے میں کسی قسم کی منفی بات، اس کو ہم سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جہاں پر تسلسل سے عین 2014 کے آغاز سے جو ایک پورا سیاسی ملبہ جو ہے وہ دن رات تمام اداروں کی ایسی تذلیل کرتا رہا ہے،
کہ پاکستانی جو ہے ان کے رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں، عام عوام اور دنگ رہ گئے ہیں کہ اس قسم کی سیاست بھی پاکستان میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ جبکہ اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ اور JIT دونوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے پاس ثبوت ہوتے تو یہ اپریل 2016 میں ہی ثبوت پیش کرتے تھے۔ اعتزاز احسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب حسن JIT میں پیش ہوا، دستاویزی ثبوت ہوتے تو پیش کر چکے ہوتے۔ اگر نواز شریف وزیر اعظم رہا تو 2 سال میں گورنر سندھ لگائے گا۔ یہ وہ پلان کر کے اٹیک کرتے ہیں، بالکل پلانڈ اٹیک تھا۔ نہال ہاشمی میں نواز شریف بولتا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ پہ یہ تو لفظی حملہ ہے، انہوں نے تو فزیکل حملہ کیا۔ میں نے الماری میں رکھے ہوں، میں نے دفتر میں رکھے ہوں، میں نے لاکر میں رکھے ہوں بینک کے، وہ میرے پاس ہیں سارے کاغذات، رجسٹری میرے پاس ہوگی، رسید میرے پاس ہوگی، کہاں سے پیمنٹ آئی، جس کی میں نے پیمنٹ دی وہ کون سے بینک اکاؤنٹ سے، کون سا ٹرانزیکشن، وہ سب کچھ میرے پاس ہوگا۔ تو یہ اگر ان کے پاس ہوتا تو یہ پہلے دن سب کچھ پیش کرتے اور اس اذیت سے ان کو سامنا ہی نہ کرنا پڑتا نواز شریف صاحب کو۔ اور نون لیگ کی رہنما کی پریس کانفرنس پر تحریک انصاف کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ PTI کے نعیم الحق کا کہنا ہے کہ JIT کے باہر جھوٹ کا بازار دیکھ کر قوم ساری کہانی سمجھ رہی ہے۔ جھوٹ، بہتان تراشی، گالم گلوچ حکمران جماعت کا وتیرہ رہا ہے۔ نعیم الحق نے یہ بھی کہا کہ اداروں کی تضحیک اور توہین کون کرتا ہے قوم خوب پہچان چکی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اہم خبر دیں آپ کو۔ ڈیپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کو 27 اپریل کو واٹس ایپ پر کال موصول ہوئی۔ کالر نے اپنا تعارف رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب محمد عارف کے طور پر کرایا اور کہا کہ JIT کے لیے 2 نئے نام دینے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ لسٹ میں عامر عزیز کا نام بھی شامل کیا جائے، تاہم فیکس پر موصول ہونے والے میمو میں کسی خاص نام کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کو رجسٹرار سپریم کورٹ کی مبینہ واٹس ایپ کال کے معاملے پر اسٹیٹ بینک کا خط سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کو 27 اپریل کو دن 2:40 پر واٹس ایپ پر کال موصول ہوئی۔ کالر نے اپنا تعارف رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب محمد عارف کے طور پر کرایا اور کہا کہ سپریم کورٹ اسٹیٹ بینک کو ایک میمو جاری کر رہی ہے جس میں JIT کے لیے 2 نئے نام دینے کا کہا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک اپنی لسٹ میں عامر عزیز کا نام بھی شامل کرے۔ کال کے 15 منٹ بعد سپریم کورٹ کا میمو گورنر کی فیکس پر موصول ہوا جس میں 2 نئے نام مانگے گئے تھے، لیکن کوئی خاص نام بھیجنے کی کوئی ہدایت نہیں تھی۔ نام 28 اپریل تک بھجوانے کا کہا گیا تھا۔ خط کے مطابق فیکس موصول ہوتے ہی بیرون ملک موجود گورنر اسٹیٹ بینک سے رابطہ کیا گیا اور اسٹیٹ بینک کے اعلیٰ حکام کا اجلاس بلایا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے اعلیٰ حکام نے گورنر کو JIT کے لیے 3 نام تجویز کیے، جن میں 3 ڈائریکٹرز محمد جاوید اسماعیل، غلام محمد عباسی اور سلیم اللہ کے نام شامل تھے۔ گورنر نے ان میں سے محمد جاوید اسماعیل اور سلیم اللہ کے ناموں کی منظوری دی۔ واٹس ایپ کالر کی شناخت کی تصدیق نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے فیصلہ فیکس پر موصول ہونے والے خط کی روشنی میں کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وفاقی وزیر شیخ آفتاب کی اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ سے ملاقات ہوئی ہے اور شیخ آفتاب نے خورشید شاہ سے قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کی درخواست کی ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز ارشد وحید چودھری سے۔ ارشد بتائے گا ملاقات میں کیا بات ہوئی ہے؟ جی بالکل، آج حکومت کی طرف سے ایک بار پھر کوشش کی گئی اور وفاقی وزیر پارلیمانی امور شیخ آفتاب جو ہیں انہوں نے اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ سے ملاقات کی اور انہوں نے درخواست کی کہ وہ بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ ختم کر کے واپس ایوان میں آئیں، اور انہوں نے کچھ تجاویز بھی پیش کی کہ کس طرح سے اپوزیشن رہنماؤں کی تقاریر جو ہے ان کو دکھایا جا سکتا ہے، جس میں قواعد ضابط میں ترامیم بھی کی جا سکتی ہیں۔ تاہم اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ جب تک پارلیمانی رہنماؤں کی تقاریر نہیں دکھائی جاتی، ان کا مطالبہ نہیں تسلیم کیا جاتا، وہ اجلاس میں نہیں آئیں گے۔ اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کا بھی اپوزیشن لیڈر اپنے مطالبے پہ قائم ہے۔ بہت شکریہ ارشد وحید چودھری اپڈیٹ کے لیے۔ اور اب بات کریں گے مہنگائی کے خلاف فروٹ بائیکاٹ مہم کی۔ آج سے اتوار تک افطاری کے لیے پھل نہ خریدیں۔
नाजायज मुनाफा खोरों को कीमतें नीचे लाने पर मजबूर कर दें। रमजान में महंगाई से परेशान अवाम की एहतजाजी मुहिम का आज पहला दिन है। महंगे फल नहीं चाहिए, महंगाई के खिलाफ सोशल मीडिया से जोर पकड़ने वाली फ्रूट बाइकॉट मुहिम का आज पहला दिन है। अवाम ने फैसला किया है कि इतवार तक महंगे फल नहीं खरीदेंगे और गिरा फरोशों के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अवाम का शिकवा है कि रमजानुल मुबारक आते ही फलों की कीमतों को पर लग गए हैं। बाजार में 60 और 80 रुपए दर्जन मिलने वाले केले अब 150 रुपए तक मिल रहे हैं। आम, आड़ू, खरबूजा, तरबूज और खजूर की कीमतें भी गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुँच से बाहर हैं। इसीलिए अवाम ने फैसला किया है कि वो 3 दिन तक फ्रूट चाट नहीं खाएंगे और गिरा फरोशों को ये पैगाम देंगे कि नाजायज मुनाफाखोरी नहीं चलेगी। गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने में बज़ाहिर नाकाम नजर आने वाली सिंध हुकूमत और कमिश्नर कराची ने भी फ्रूट बाइकॉट मुहिम की हिमायत का ऐलान किया है और यकीन दिलाया है कि वो रमजानुल मुबारक के दौरान महंगाई करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। फलों की आसमान को छूती कीमतों ने रोजेदारों को तो परेशान कर ही रखा था, लेकिन अवाम की जानिब से महंगे फलों के बॉयकॉट ने अब फल फरोशों को भी परेशान कर दिया है। कराची की फ्रूट मंडी में इस बॉयकॉट मुहिम के बाद क्या सूरत हाल है, रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज काशिफ मुश्ताक। नाजायज मुनाफाखोरों को कराची के शहरियों का जवाब, फल ना खरीदने की 3 रोजा मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। केले, सेब, खरबूजा, तरबूज, खजूर, आम और आड़ू समेत कोई फल ऐसा नहीं जिसके दाम आम आदमी की पहुंच में हो। अवाम की जानिब से फल फरोशों के बॉयकॉट मुहिम का आज आगाज तो हो गया, लेकिन मंडी के व्यापारी कहते हैं अवाम की मुहिम से उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। नहीं, कोई खराब नहीं होता माल। पीछे से बागों से माल आना कम हो जाएगा। शहर कराची में दूसरे शहर बहुत हैं, यहाँ तक तो फेल हो जाएगी, मगर हैदराबाद तक तो फैली हुई। हाँ, जब अवाम जब एक चीज़ का उस पर एका कर लेंगे तो लाजमी बात है हर चीज़ पे फर्क पड़ जाएगा। दूसरी जानिब मंडी में शहर भर से आने वाले फल फरोश, दुकानदार और ठेले वाले परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर मंडी से खरीदे फल अवाम ने उनसे ना खरीदे तो उन्हें नुकसान होगा। ये तो खरीदा हुआ माल है, नुकसान हो फायदा हो हमारा है। ये जो नाजायज मुनाफाखोर है इनके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए और हम इसके साथ आप लोगों के साथ भरपूर हमायत करते हैं। जो मंडी के आवाम जो है वो खुद बंद करता है, रेडी वाला का कसूर नहीं है। फलों के महंगे दामों पर अवाम की बाइकॉट मुहिम का आज पहला रोज है। मुहिम इतवार तक जारी रहेगी। कैमरामैन नासिर अली के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज कराची। तो फ्रूट फ्री वीकेंड पर अमल शुरू हो गया है और कराची की तरह इस्लामाबाद के शहरी भी फलों की बाइकॉट मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। जुमा बाजार में फ्रूट सेक्शन मांद पड़े हैं। दुकानदार कहता है कि सिर्फ आज के दिन फ्रूट खरीदने वालों की तादाद में 50% तक कमी हुई है। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा आमना आमिर। फ्रूट की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से फ्रूट की खरीदारी ना की जाए, 3 दिन तक इसका मुकम्मल बाइकआउट किया जाए, ये कैंपेन सोशल मीडिया से चली थी और आज इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ हो गया है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ जो कि हर जुमे को यहाँ लगती है और इस वक्त सूरत हाल ये है, लोगों की बड़ी तादाद जो है सब्ज़ी खरीद रही है और उनका कहना है कि वो सब्ज़ी खरीद रहे हैं, लेकिन जो फ्रूट की कीमतें इतनी ज़्यादा महंगी है उसका वो बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि ये कीमतें जस्टिफाई नहीं है। दूसरी तरफ दुकानदार का कहना है कि जैसे ये कैंपेन शुरू हुई और इस पर अमल दरामद आज शुरू हुआ तो जो कस्टमर की तादाद थी फ्रूट के खरीदारों की उसमें तकरीबन 50% तक कमी देखने में आई है और उनका यह भी शिकवा था कि अगर फ्रूट की कीमतें कम ही करनी है तो हुकूमत जो है मंडियों में जाके आड़तियों से कंट्रोल करवाए। जी लाहौर की बात करते हैं। फलों की महंगे दामों फरोख्त के खिलाफ जारी 3 रोजा मुहिम के लाहौर में क्या असरात हो रहे हैं, ये बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज नवीन अली। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर महंगे दामों फल फरोशों के खिलाफ जो मुहिम का आगाज़ किया गया है, आज उसका पहला रोज़ है और पहले ही रोज़ ये देखने में आ रहा है कि दुकानदार और शहरी दोनों ही अपने इरादे के पक्के दिखाई दे रहे हैं। जहां शहरियों ने ये इरादा किया है कि वो 3 दिन तक फल नहीं खरीदेंगे और इफ्तारी में फलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो दुकानदार जो है वो भी अपने इरादे के पक्के हैं। जिन दामों पे जो उन्हें मंडी से मिलेगा वही दामों वो आगे बेचेंगे, उनके इख्तियार में नहीं है फल सस्ते करना। जो अभी की सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि जो फलों की दुकानें हैं वो बिल्कुल वहाँ पर कोई ख़रीदार दिखाई नहीं दे रहा। आटे में नमक के बराबर जो ख़रीदार हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सो अभी तो ये पहला दिन है, अभी ये दुकानदार जो है क्या फल सस्ते करते हैं या नहीं, ये तो इस मुहिम के आखिर तक ही पता चलेगा। जी
आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करेंगे चारसद्दा से, जहां पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला बारूद और असलहा बरामद हुआ है। बरामद असलहे में 2 खुदकुश जैकेट्स, 9 मिसाइल, 100 दस्ती बम भी शामिल हैं। ये बताना है DPO का। कार्रवाई थाना मंदनी की हुदूद खंजरकली में की गई है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के शेख खालिद ग्रुप के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सब्ज अली तरीन से। सब्ज अली तरीन बताएगा मजीद क्या बताना है DPO का। जी, अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DPO सोहेल खालिद ने बताया कि पुलिस ने इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट पर 2 दिन कबल 2 दहशतगर्द मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इलियास को गिरफ्तार किया था और उसकी निशानदेही पर खंजरकली से, जो थाना मंदनी का इलाका है, वहाँ से उनके घर से बड़े पैमाने पर ये असला व बारूद बरामद किया गया है। इसमें 2 खुदकुश जैकेट है और 9 मिसाइल भी है। इसके अलावा 100 हैंड ग्रेनेड भी है, कारतूस भी है, बड़े पैमाने पर इसमें बारूदी मवाद भी शामिल है। इसके अलावा DPO सोहेल खालिद का कहना था कि ये ग्रुप काफी अरसे से इस इलाके में सरगर्म है और उसने चारसद्दा और गिरदुनवा में बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की है। उन्होंने ये भी कहा कि इस ग्रुप ने एतराफ़ किया है कि चारसद्दा और करीबी अजला में 109 कार्रवाइयाँ की है, जिसमें सबसे बड़ा जो शबकदर में खुदकुश हमला हुआ था, उसमें 100 अफराद जो थे वो शहीद हो गए थे। चारसद्दा और गिरदुनवा में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बहुत शुक्रिया सब्ज अली तरीन। गर्मी और बिजली का गठजोड़, रोजेदारों का कड़ा इम्तिहान। कराची में बिजली की आंख मिचोली रात भर सताती रही। गुलिस्तान जौहर और कोरंगी में मुश्तिल अवाम का एहतजाज सामने आया। का पारा चढ़ा हुआ है तो दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की तवील बिजली की बंदिश ने शहरियों का पारा भी हाई कर दिया है। सहर हो या इफ्तार, अवाम को अंधेरे और गर्मी में ही गुजारा करना पड़ रहा है। के इलेक्ट्रिक के सहर और इफ्तार में लोड शेडिंग ना करने के दावे तो पहले ही रोजे को झूठे साबित हो गए थे। सबर का पैमाना लबरेज होने पर शहरियों ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज करने को मामूल बना लिया है। कोरंगी जमान टाउन और इतराफ में 24 घंटों से बिजली की बंदिश पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुश्तिल अफराद ने सड़कों पर टायर नजर आतिश किए, जिसके बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 और औरंगी टाउन 5 नंबर में भी बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों ने टायर जलाकर एहतजाज किया। शहर के वो इलाके जहां बिजली की फराहमी मुतासर रही, उनमें लियाकताबाद, ओल्ड सिटी एरिया, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, लांडी समेत दीगर इलाके शामिल हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि सहरी के औकात में रिहायशी इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। रमज़ान में आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिश है। सहरी के औकात में किसी मकामी फॉल्ट्स को लोड शेडिंग का तासुर देना गलत है। कंजा फैसल, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर लिए चलेंगे आपको, जहां पर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज इलाही इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अस्पताल और ये 10 अरब 30 करोड़ रुपए हर साल ये ज़ाया कर रहे हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। और एक तरफ प्रायोरिटी देखें, मरीज़ मर रहे हैं, अस्पताल जो है वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, जहाँ पे इक्विपमेंट होना है वहाँ नहीं है, वेंटिलेटर जहाँ चाहिए वेंटिलेटर नहीं है, वहाँ जहाँ डॉक्टर चाहिए डॉक्टर नहीं है, बेसिक हेल्थ यूनिट जिनको हमने बात किया था वो बात नहीं है। तो प्रायोरिटी देखें इनकी। और क्योंकि ये इसमें माल बनता है इसलिए हमने मुल्तान में बना दी और वहाँ भी यही हाल है, और इसी तरह वहाँ इस्लामाबाद में भी बन गई, वहाँ भी यही हाल है। और इसमें जो मुख्तलिफ मटीरियल हैं, अब देखें क्योंकि ये बादशाही है ना, सिक्खी शाही है, इनके ऑडिटर जनरल साहब कह रहे हैं कि 32 करोड़ की अदायगियाँ जो हैं ये फालतू कर दी हैं। बार बार इनको पूछते कि भाई फालतू क्यों की हैं? बस मर्जी है, ये अपना पैसा है। खबर शामिल करेंगे बहावलपुर से, जहां से 4 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से बताया जाता है, जबकि दहशतगर्दों में मोहम्मद नईम, तहसीन अस्करी, जाहिर खान और उमर यार शामिल हैं। CTT ज़राए का ये भी बताना है कि दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, दस्ती बम और दीगर अशिया बरामद हुई हैं। दहशतगर्द हसास तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। बहावलपुर से 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
कराची से आपको खबर दें, जहां के इलाके औरंगी टाउन की जिया कॉलोनी में पुलिस मुकाबला हुआ है। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम के कब्जे से असलहा और 5.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। मारूफ कानूनदान शरीफुद्दीन पीरजादा इंतकाल कर गए। शरीफुद्दीन पीरजादा 3 मरतबा अटॉर्नी जनरल और अयूब दौर में वजीर खारजा भी रहे। शरीफुद्दीन पीरजादा पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने OIC में जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर खिदमात अंजाम दी। तारिक मोइन सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। शरीफुद्दीन पीरजादा का शुमार पाकिस्तान के मारूफ कानूनी माहिरीन में होता है। वो 1923 में मध्य प्रदेश के शहर बुरहानपुर में पैदा हुए। उनके वालिद मीर नियाजी पीरजादा भी एक मारूफ वकील थे। शरीफुद्दीन पीरजादा 3 मरतबा पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रहे। सदर अयूब खान की काबीना में वजीर खारजा के तौर पर काम किया। वो पहले पाकिस्तानी थे जो मुत्तफ़क़ा तौर पर 1985 से 1988 तक OIC के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। शरीफुद्दीन पीरजादा को मुल्क में आइनी उमूर के मारूफ वकील की हैसियत हासिल रही। उन्होंने बैनुल-अक़वामी फोरम्स और ट्रिब्यूनल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिनमें रनकच केस, नमीबिया रेफरेंस और भारत के खिलाफ सिविल एविएशन कवानीन की खिलाफ वर्जी का केस शामिल है। वो जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ के दौर में अहम कानूनी मुशीर की हैसियत से खिदमात अंजाम देते रहे। उन्हें कानूनी हलकों में आइनी मामलात पर खासा मुतनाज़ा समझा जाता रहा है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती प्रोग्राम की तफसीलात जियो न्यूज ने हासिल कर ली है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 550 से बढ़ाकर 635 अरब कर दिया गया है। दस्तावेज के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम के बजट में 15% इजाफा किया गया है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे के लिए 96 और अमन अमान के लिए 120 अरब रुपए, सेहत की मद में 57 अरब, स्कूल एजुकेशन की मद में 53 और हायर एजुकेशन की मद में 18 अरब, साफ पानी स्कीम के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खादमे आला रूरल प्रोग्राम के लिए 17 अरब, लैपटॉप स्कीम के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के माली साल 2017-18 के लिए बजट दस्तावेज की तफसीलात भी जियो न्यूज ने हासिल कर ली है। दस्तावेजात के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 126 अरब रुपए होगा। जी हाँ, और बजट में प्राइमरी और सानवी तालीम के 77 मंसूबे शामिल होंगे। दस्तावेज के मुताबिक तालीम के मंसूबों के लिए 14 अरब 28 करोड़ 30 लाख रुपए रखने की तजवीज़ पेश की गई है। इसी मुतालिक मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज शकील फरमान अली से। शकील, बताएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस साल का सालाना तरक्याती प्रोग्राम है, उसके लिए बजट 126 अरब से जायद होगा और बजट में जो है 410 जो है तालीम के हवाले से प्राइमरी स्कूल की तामीर का मंसूबा शामिल है। 14,000 नए इस्तादजा जो हैं वो भर्ती किए जाएंगे और सबसे एक अहम काम किया जा रहा है, वो किया जा रहा है सर्वे किया जाएगा और उन बच्चों की तादाद मालूम की जाएगी जो कि स्कूल नहीं जाते। इसी तरह जो है जमात से मैट्रिक तक की जो तालबात हैं उनको 200 रुपए जो है सूबाई हुकूमत माहाना वजीफा देगी। इस हवाले इसके अलावा जो है आला तालीम के जो है 63 मंसूबों के लिए 6 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है और यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी जायजा लेने के लिए जो है क्वालिटी इंश्योरेंस सेल भी कायम किया जाएगा। सूबे में जो है 10 नए सरकारी कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। सेहत के 101 मंसूबों के लिए 12 अरब 30 करोड़ 70 लाख। खैबर पख्तूनख्वा के माली साल 2017-18 के लिए बजट दस्तावेज की तफसीलात जियो न्यूज ने हासिल कर ली है। बहुत शुक्रिया आपका शकील फरमान अली। अब खेल ही खेल में बन जाएं करोड़पति और हो जाएं माला माल। पाकिस्तान के सबसे बड़े गेम शो जियो खेलो पाकिस्तान में दिए जा रहे हैं करोड़ों रुपए के बड़े बड़े इनामात। जियो खेलो पाकिस्तान के 5वें रोज की एक्टिविटीज बता रही हैं कराची से मलिका खान। करोड़ों के इनामात की बारिश ही बारिश। खेल खेल में बन जाइए करोड़ों के मालिक। जियो टीवी की पेशकश गेम शो जियो खेलो पाकिस्तान ने मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए और गेम शो कैसा होता है सबको बता दिया। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम और स्पीड स्टार शोएब अख्तर ने जियो न्यूज से खुसूसी बातचीत की और प्रोग्राम की बेहद पजीराई पर नाजरीन का शुक्रिया अदा किया। I wanted to do something new, something different, and I'm enjoying it thoroughly. And Shoaib
has been phenomenal. It's really pleasure to be here. We didn't know कि हम इतने बड़े एक्टर्स भी हैं. वो थैंक्स टू वसीम भाई जिन्होंने मेरा टैलेंट को पूरी तरह बाहर निकाला. आप वो है ना जो एक ओवर में 6 अलग अलग गेंदें फेंकते थे, जी बिल्कुल वही हूँ. तो आपको अंपायर कुछ नहीं कहता था. गाड़ी और मोटरसाइकिल जीतने वाले खुश नसीबों की खुशी का ठिकाना ना रहा. बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे बेबी तो घर से बोल के आई थी मैं गाड़ी और बाइक दोनों जीतूंगी, और इंशाल्लाह अल्लाह ने इसकी ज़बान सुनी और ये दोनों चीज़ें जीत के जा रही है यहाँ से. उन्होंने बॉक्स खोला और मेरी बाइक निकल आई, क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ. थैंक यू सो मच जियो. बहुत अच्छा लगा और बाइक जीत के तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है. थैंक्स फॉर जियो. जियो खेलो पाकिस्तान के 5वें रोज 6 उम्रे के टिकट, गाड़ी, 23 मोटरसाइकिलें, दर्जनों मोबाइल, कई तोले सोने के बेशकीमत इनामात दिए गए. कैमरामैन अदनान अली के साथ मलिका खान, जियो न्यूज़, कराची. मारूफ मज़ाहिया अदाकार नन्ना की 33वीं बरसी आज मनाई जा रही है. अपने वक्त के मशहूर कॉमेडियन के फन पर देखते हैं लाहौर से इरफान नज़ीर की रिपोर्ट. मैं अपनी तियां नहीं ब्यावांगा. मैं उन्हां प्योआं च नहीं बेगम जेड़े तियां नूं अपना बोझ समझदे ने. रफ़ी खावर अल मारूफ नन्ना 14 अगस्त 1944 को पैदा हुए. पहली फिल्म वतन का सिपाही 1966 में रिलीज हुई. फनी कैरियर में 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. मतलब अब्बे ने मैंने कैसी के जाके पता करके आके सवेर की चाची की आवाज ही नहीं सुनी, नहीं तो ऐस वेले तक 4-5 बारी पौंक चुकी होंदी. जिद्दी, नौकर, सोहरा तजवाई, साला साहब, सोना चांदी और ठेका पहलवान उनकी मशहूर फिल्मों में शामिल हैं. नौकर नूं बुलाया तो नाल ही ले आई. नौकर की बकवास करता था. अदरा अदरा नन्ना को फिल्म दी जुमलों की अदायगी, चेहरे के तासरात और डायलॉग डिलीवरी में कमाल हासिल था. टीवी प्रोग्राम अल्फ नूर में कमाल रिजवी के साथ अदाकारी में नन्ना का फन अरूज पर नजर आया, जबकि अली इजाज के साथ ड्रामा दुबई चलो बहुत मकबूल हुआ. बतौर मज़ाहिया अदाकार अपनी पहचान बनाने वाले नन्ना फन की बारीकियों से वाकिफ थे. नन्ना ने 3 निगार अवार्ड अपने नाम किए. 2 जून 1984 को उन्होंने खुदकशी कर ली. इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर.